Very good morning, children. This is the first lecture of our state online classes, in which we have today our English subject. And for English, I think it is very important to understand our textbook, because we are going to handle that textbook. So we should have an idea कि ये textbooks में दिया क्या गया है, what they have expect us to do, and what they want us to learn, what skills and what qualities. Okay, so we'll begin with our first lecture, and it's our let's know our textbooks. So I have kept today's topic, let's know our textbooks, in which we will study, we will learn, we will understand about our English textbook. So this is the cover page, children. This is the front cover page and this is the back side. Okay, so here this is our English Kumar Bharati standard 10th. Now here, children, I'll request you to kindly explain the front cover of these textbooks. What can you see? What is your imagination about the textbooks? So what can you see here in the front cover? Can you unmute yourself and respond? Yes, please. Hello. Hello. In this textbook, there is a squirrel and on a tree branch. Okay, so what that squirrel is doing here? Seeing something. Okay, who else? Anyone else? Children, please कोई और आंसर देगा मुझे? Yes, Vishal. Hello. Hello. Yes, please. Am I audible? Yes, please. I can see on the front of textbook that a squirrel is sitting on a branch. Yes, and Yes. and she is try to imagine what is going in the world. Okay. Miss, it is giving us a sign off that we should do self-studies. Okay, correct, children. Now please listen. Squirrel की qualities क्या होती है? क्या होते हैं कि वो चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है. ओके, आपने देखा होगा स्क्विरल कैसे फाइंड आउट करता है? स्मेल के थ्रू. ओके, स्मेल से वो पहचानता है. सो एज अ चिल्ड्रन हम लोग किसी चीज को कैसे लर्न करते हैं? थ्रू आवर इमेजिनेशन. ओके, सो हियर वी हैव God has given us a good thing that we can imagine things. So after imagination, if you'll see this part, the back cover, what all things are given here? Two children are studying, okay, a girl and a boy, and they are using different media, different sources. Okay, please, student, any one of you can tell me what sources are there with the help of which we can learn. Yes, unmute yourself. Teacher, one boy is learning about textbook and one girl is learning computer. She's not learning computers, she's learning with the help of computer. And this boy, he is trying to find out, or we can say studying with the help of textbook. So all these are your different sources with the help of which you will learn in this academic year. With in these textbooks, you will use all these different sources, which has traditional also textbooks bhi hai. Here we can see ऐसे टाइप का पिक्चर से क्या पता चलता है? ये oldest ancient time के scriptures रहते थे. Then we have radio, okay, and we have our textbook. Not only this textbook, but any book. So here, what is given over there?
कि आपको इस ईयर जो भी स्टडी करना है, इट इज बेसिकली लाइक आपका सेल्फ स्टडी ज्यादा होगा, वेयर you make use of all these sources and you will study. So this was your front cover and back cover. Now we will move to the textbook. So this is the next picture. Here different streams are given. Children, please tell me, what can you see in this picture? Unmute yourself and say. Means they are thinking what to choose after 10th. Okay, so here what we are going to choose. अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना 10th स्टैंडर्ड होने के बाद, whether you will take science, arts or commerce. Okay, so this is about your future. So 10th standard के बाद you will select your stream. Now in this part, it's all about the committee members and the persons who are involved in framing these textbooks, and the who has designed this cover. Okay, now here we have publisher's name, so everything about your textbooks. Now we have, next we have Constitution of India, preamble. Here we have preamble of the Indian Constitution. Now, and here we have national anthem and pledge. This is a preface. This is for you all children. So when you will have time, and or after this lecture, I will request you to read this part, these 2 pages. This is for you. So you should know what is given in these textbooks for you. Okay. Now, these are your competencies. Children, competencies का मतलब होता है different skills. कुछ अच्छे से सीखने के लिए या जो सीखा हुआ है उसको और अच्छा समझने के लिए few skills are required. अभी यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश की बात हो रही है. सो व्हेन यू विल स्टडी दिस टेक्स्ट बुक, आपको स्टूडेंट्स को कौन कौन से स्किल्स आएंगे? फर्स्ट है आपका लिसनिंग स्किल, देन यू हैव स्पीकिंग स्किल, देन रीडिंग एंड राइटिंग स्किल. ओके, दीज आर 4 मेन स्किल्स जो आपका डेवलप होगा. और एंड हियर यू कैन सी दिस सब पॉइंट्स, मतलब इसमें क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल, आई विल एक्सप्लेन द फर्स्ट वन. एंजॉय लिसनिंग टू इंग्लिश प्रोग्राम. ओके, अभी आप ये टेक्स्ट बुक्स रीड करोगे, यू विल कम टू नो अबाउट न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ल्ड, न्यू थिंग्स रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज. सो आपको क्या होगा, इस सभी टेक्स्ट बुक्स के हेल्प से यू विल स्टार्ट लिसनिंग टू प्रोग्राम. सो प्रोग्राम भी जो आप लिसन करोगे तो साइमल्टेनियसली आपका इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो इम्प्रूव होगा. सो फॉर डेवलपिंग दिस स्किल ये टेक्स्ट बुक हेल्पफुल है. देन अबाउट स्पीकिंग, सो यू कैन स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली. ये स्किल आपका एक्सपेक्टेड है कि डेवलप होगा. एंड इन रीडिंग, रीड लिटरेचर फॉर प्लेजर. ओके, रीडिंग सिर्फ स्टडी के लिए नहीं होता है, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए नहीं होता है, बट फॉर प्लेजर ऑल्सो. बहुत लोगों की हॉबी होती है रीडिंग. सो धीरे धीरे अगर हमें कोई भी चीज समझ में आती है तो हम उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं. तो जब ये लैंग्वेज हमें क्लियर होगा, सो यू विल स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश लिटरेचर, जो इंग्लिश में बुक्स लिखी गई हैं, नॉवेल्स हो गए, पोएम्स हो गए, ड्रामा हो गया, whatever. So you will start developing interest in that part. Now what about writing skill? Writing skill is related to your highest level of, I think, skill. This is your highest, where you will be able to write poem or small skits in English. Okay, paragraphs. You will be able to transform prose into poetry or poetry into prose. So many skills will be developed with the help of these textbooks. Now we have here study skills. What are study skills? Children, study skills क्या होता है? जो आपने लर्न किया है उसको परफेक्ट करने के लिए, और इवन जो नया है उसको सीखने के लिए ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल है पैराफ्रेज.
पैराफ्रेज अ वर्ड और अ फ्रेज, मतलब पैराफ्रेज मतलब है कि उसको बहुत अभी डिफरेंट स्टाइल में डेवलप करने का. Okay, here complete list of here useful words, expressions, idioms, definitions, and formula. Okay, here we have study skills. Now move to the next slide. Let's understand about the this language study. Language study क्या होता है children? It is nothing but your grammar. तो जो ग्रामर है उसी को लैंग्वेज स्टडी बोला गया है, बिकॉज वो लैंग्वेज की स्टडी के में हेल्पफुल है. सो हियर वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स. जैसे यहाँ पर फर्स्ट है आपका अल्फाबेट्स. ओके, अब यहाँ अल्फाबेट्स में क्या दिया गया है? लेटर्स, साउंड, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फोनेटिक, सिंबल्स. सो आपका इसमें कैसे है? अल्फाबेट्स में ये सारी चीजें आपको आएगी. ओके, ये टेक्स्ट बुक में जब आप रीड करोगे तो ग्रामर पार्ट में यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज टॉपिक्स, जिसमें आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना होगा. ओके, फोनेटिक साउंड्स, सिंबल्स आपको मालूम होंगे, कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. नाउ वी हैव नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं? वो हम 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. अभी उसमें नाउन में कौन कौन से टॉपिक आपको इस ईयर आने वाले हैं? टाइप्स ऑफ नाउन में यू विल हैव काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. ओके, विच यू कैन काउंट एंड विच यू कैन नॉट काउंट. क्वांटिटी काउंट नहीं हो सकती. देन वी हैव सिंगुलर, प्लूरल, इररेगुलर. वी हैव कॉमन नाउन, वी हैव प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट. so all these are सब टॉपिक्स अंडर नाउन. नाउन के अंदर यू विल हैव ऑल दीज सब टॉपिक्स. देन यू हैव वर्ब. सो वर्ब्स में भी क्या होता है? यू हैव मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ट्रांजिटिव, intransitive, finite verbs, infinite verbs, gerund, participles. You have time, tense, and aspects, different types of tenses. You have singular and plural forms and phrasal verbs. You have pronouns and their types. Okay, so after verb you have pronoun. So under pronoun you will have different types. Then we have this adjectives. Then we have adverb, preposition, and conjunction, interjections. Determiners, we have articles, demonstrative, possessive, quantifiers, numerals, degree of comparison, positive, comparative, and superlative degrees. Children, जो भी ये सब टॉपिक्स में आपको बोल रही हूँ, ये सब टॉपिक्स में आपने बहुत सारी चीजें, मैक्सिमम 90% चीजें यू हैव कवर्ड इन योर 9th स्टैंडर्ड. तो यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो आपको नए लगेंगे, बट जब आपको ग्रामर का पार्ट, व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग दोस टॉपिक्स, स्टडिंग दोस टॉपिक्स, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. देन वी हैव योर नेक्स्ट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर. you have types of sentences, जिसमें types of में you have exclamatory, you have positive, we have negative sentence. Okay, so all these are types according to structure. Then we have sentence में और कौन सा grammar आएगा? We will have subject and predicate. तो हमें वो 8th standard में हमने cover किया था subject and predicate. Then phrases and clauses, so it was already there in your 9th standard. आपके जो एक्टिविटी शीट्स में था, आपने देखा होगा. अंडरलाइन द मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. देन योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. दिस ईयर वी विल हैव कि नेगेटिव सेंटेंस आया तो उसको कैसे हमें पॉजिटिव में चेंज करना है, और एक्टिव वॉइस है तो कैसे हमें उसको पैसिव में चेंज करना है, या पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है. सो वी विल हैव ऑल दिस types of transformation of sentence. Transformation of sentence में we will have questions. Okay, जैसे आपका WH question हो गया, we will have negative से positive change करना रहेगा. Even we will have tags also. Question tag आएगा आपको. Then we will have voice, reported speech, indirect speech. आप लोग को पता होगा, we will get questions.
हायर ऑर्डर क्वेश्चंस में वो आएंगे. देन ज्वाइनिंग द सेंटेंस, आपको कंजंक्शन यूज करके सेंटेंस ज्वाइन करना रहेगा. Now we'll see the vocabulary and word building. Synonyms, antonyms, homonyms, register, root word, prefix, suffix, compound words, minor processes of word building. Okay, reduplicatives, clipping, blends, acronyms. इसमें से कुछ कुछ वर्ड्स आपको नए लग रहे हैं, बट ये सारे अपने प्रैक्टिस किया है ये, बट ये टर्म्स आपको नए लगेंगे. सो वोकैबुलरी में रिलेटेड टू योर वर्ड बिल्डिंग नॉलेज जो भी है, वर्ड रजिस्टर रहेगा. जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, अभी मुझे फॉरेस्ट का वर्ड रजिस्टर बनाना है. वर्ड रजिस्टर मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड वर्ड्स हमें कलेक्ट करना है. तो हम बहुत सारी चीजें उसमें लिख सकते हैं. एनिमल्स लिख सकते हैं, ग्रीनरी लिख सकते हैं, प्लांट्स लिख सकते हैं, फ्लोरा एंड फौना लिख सकते हैं. सो दीज आर योर वोकैबुलरी पार्ट. नाउ पंक्चुएशन मार्क्स. चिल्ड्रन, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है, जिसमें यू हैव टू यूज एंड यू हैव टू करेक्ट द सेंटेंस, जिसमें आपको पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने रहेंगे. इवन यू विल हैव यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स. कभी कभी क्या होता है, जो प्रॉपर नाउन है उस स्मॉल लेटर में लिखा होता है, बट वहां पर हमें करेक्शन करके कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना पड़ता है. सो दिस वे पंक्चुएशन मार्क्स में आपको ये सारी चीजें आएंगी. तो मेनी पंक्चुएशन मार्क्स आर देयर, लाइक फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन, डैश, कोटेशन. कोटेशन मीन्स आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा जो रहता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो रहता है, डायलॉग जो बिगिन होने के पहले लगाया जाता है और डायलॉग एंड होने के बाद क्लोज किया जाता है. देन एपोस्ट्रोफी, देन वी हैव ब्रैकेट्स, कॉलन, सेमीकोलन, यूज ऑफ कैपिटल. नाउ विल सी स्पीच. In speech, we will have pronunciation, syllables, stress, intonation, rhyme, rhythm, some prosodic features. ना चिल्ड्रन, इसमें कैसा है, आपको 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक्स का ग्रामर का जब आप पार्ट देखोगे, तो यहाँ वहां पर आपने पढ़ा होगा ये सब सिलेबल्स के बारे में, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन के बारे में. और राइम और रिदम क्या होता है? राइम एंड रिदम मीन्स आपके जो पोएम में राइमिंग स्कीम्स रहते हैं, राइमिंग वर्ड्स रहते हैं, या पोएम कौन से फॉर्म में है उसके बारे में. देन वी हैव फिगर्स ऑफ स्पीच. ओके चिल्ड्रन, हियर वी हैव फिगर्स ऑफ स्पीच. आपको यहाँ पर ही सारे फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम मिल जाएंगे, जो जो आपके टेक्स्ट बुक्स में आने वाले हैं, जो आपके पोएम में दिखाई देंगे आपको. तो एटलीस्ट आप नाम से फेमिलियर रहोगे, सो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी इजी हो जाएगा. सिमिले मेटाफर तो मोस्ट कॉमन है, एलिटरेशन ये भी मोस्ट कॉमन है. तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच है जो आपको याद होंगे उनके नाम. और ये सब कहाँ से हमें पढ़ना है, आई विल हेल्प यू, आई विल लेट यू नो in the later part of the lecture. And now we have here we have about idioms and proverbs and usages. अभी proverbs का यूज कहाँ कहाँ होता है चिल्ड्रन? इन योर राइटिंग स्किल पार्ट. जब भी आपको राइटिंग स्किल में ऐसे राइटिंग लिखने के लिए आता है, या एक्सपांड द थीम लिखने के लिए आएगा, तो देयर प्रोवर्ब्स दिए रहते हैं, और आपको 5 मार्क्स में वो प्रोवर्ब को एक्सप्लेन करना रहता है विद एग्जाम्पल्स. तो आपको ये आएगा उधर. नाउ अभी अगर मुझे ये सब पढ़ना है, ओके अभी अगर मुझे ये सब पढ़ना है, फ्रॉम वेयर आई विल गेट ऑल दिस बैकग्राउंड, मुझे कहाँ से पता चलेगा? फ्रॉम योर 9th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक. आप अपने 9th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक देखोगे, तो उस टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 109 से लेके 120, ओके इस पेज पे आपको ऑलमोस्ट ये सारे जो चीजें हैं. ओके अलीशा, you have raised your hand, you can unmute and you can ask your doubt. Okay, so here from page number 109 से लेकर, ओके 109 से लेकर 120 पेज तक ये सारे ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है. कौन से क्लास की बुक में? 9th स्टैंडर्ड की बुक में. तो आपके पास अभी वो बुक्स होंगे, सो यू कैन गो थ्रू दैट पेजेस, और उस पेजेस में आपको ये सारे कवर अप किए हुए रहेंगे टॉपिक्स.
सो विल सी कि अभी 9th स्टैंडर्ड की जब हम पढ़ेंगे ग्रामर का ये वाला 109 to 120 पेज वाला जो पार्ट है, उसमें हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। सो हियर दिस इज योर कंटेंट पार्ट। 10th अभी जो इस ईयर का जो है आपका ये कंटेंट दिया गया है, जिसमें यू हैव 6 सब यूनिट्स। ओके, एक यूनिट में 6 चैप्टर्स या 6 लेसन्स बोल सकते हैं दिए गए हैं। आउट ऑफ दीज 6 यू हैव 2 पोएम्स। ओके, 2 पोएम्स एंड 4 प्रोज। आपको 2 पोएम मिलेंगे और 4 प्रोज मिलेंगे, लेसन्स मिलेंगे। सो ऑल टुगेदर वी हैव हियर 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स में ईच यूनिट हैज 6 lessons or 6 topics, you can say. Those 6 topics, out of those 6 you have 2 poems. एक एक आपको चैप्टर में दो दो, एक एक यूनिट में आपको दो दो पोएम्स मिलेंगे। तो यहाँ पर 4 यूनिट्स है, मतलब ऑल टुगेदर आपको 8 पोएम्स मिलेंगे पूरे आपके यूनिट्स में। पूरे आपके टेक्स्ट बुक में यू विल हैव 4 पोएम्स। ओके, सो ये 4 पोएम्स अभी हमें स्टडी अपना प्लान करना पड़ेगा। जून से ही यू हैव टू स्टार्ट प्लानिंग योर होल ईयर, कि हमें होल ईयर कैसे ये एक्टिविटीज कंप्लीट करना है, कवर अप करना है। अभी आपको पता है कि पोएम से रिलेटेड वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन के लिए और एक आता है आपका पोएम अप्रिसिएशन के लिए। ओके, सो अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। तो अभी 8 पोएम दिए गए हैं। इट मीन्स कि आपको इस 8 में से बोर्ड एग्जाम में 2 पोएम आएगा, जिसमें से एक आपको कॉम्प्रिहेंशन होगा और एक आपको होगा पोएम अप्रिसिएशन। तो कैसे आपको प्रिपेयर करना है पूरे ईयर का, यू हैव टू डू दैट ऑन योर ओन। लेट्स सी द 9th स्टैंडर्ड का जो मैंने आपको बताया था कि पेज नंबर 109 से 120 तक क्या दिया गया है। We'll see that. Now here in the beginning it is given कि लैंग्वेज स्टडी का एम क्या है। लैंग्वेज स्टडी का एम क्या है, ग्रामर का एम क्या होता है चिल्ड्रन? प्लीज एनी वन ऑफ यू, इफ यू कैन आंसर, इफ यू वांट टू आंसर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। लैंग्वेज स्टडी मतलब ग्रामर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? श्वेता, श्वेता you can unmute yourself. पलक, children can you hear me? Teacher, हाँ, yes. teacher, it helps to improve our English language. How? कैसे? By study grammar, then we can understand how and where we have to use the sentence or word. हाँ, okay, very good. Nasreen, will you please unmute yourself? How we can speak English properly, and how we can tell to somebody that we are talking English. Okay. Hello? हाँ, yes. Okay, पलक,
यस मैम। मैम उसमें हम लोग ग्रामर याद कर सकते हैं, सच लाइक अबाउट सेंटेंसेस। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि लैंग्वेज स्टडी मतलब ग्रामर का क्या रोल होता है किसी भी लैंग्वेज में। आप हिंदी लैंग्वेज में भी तो ग्रामर पढ़ते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पढ़ते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं, मराठी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं। क्यों ग्रामर का क्या इम्पोर्टेंस है? जब हम किसी से टॉक करते हैं, बात करते हैं, तभी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है लैंग्वेज स्टडी का। ओके, ओके सोनिया। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग पल्लव। मिस हमें मतलब ग्रामर से हेल्प होता है कि हर वर्ड का मीनिंग पता चलता है, और हमें कौन सा वर्ड किस जगह पे यूज करना हमें वो पता चलता है। वर्ड का मीनिंग तो हमें वोकैबुलरी के थ्रू पता चलता है, सिनोनिम, एंटोनिम। ओके, हाँ। और ग्रामर का क्या इम्पोर्टेंट, बस आप एक एग्जाम्पल भी आप ले लोगे। अगर आपको किसी से बात करना है तो अगर आप अगर आप लड़की से बात कर रहे हैं तो हम वो जेंडर में सेंटेंस में वो वर्ड गई, खाई, ऐसे वर्ड यूज करते हैं। ओके, सो अगर हमें वो पता नहीं होगा सो हमारा जो कॉन्वर्सेशन होगा वो बहुत एकदम इनअप्रोप्रिएट होगा। सो वाइल राइटिंग, वाइल स्पीकिंग, हमें ग्रामर का यूज बहुत करेक्ट ग्रामर का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये लैंग्वेज स्टडी आपको 9th में क्यों दिया गया है, बिकॉज 8th स्टैंडर्ड के बाद आपके टेक्स्ट बुक का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है थोड़ा। सो अभी तो 8 का भी चेंज हुआ है, सो धीरे धीरे जो छोटे बच्चों की बुक्स है वो भी चेंज होने वाली है। बट क्या है कि आपको वो जो नॉलेज ये नॉलेज रहना चाहिए कि ग्रामर का क्या रोल है। अगर आपको उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं होगा तो आप पढ़ोगे कैसे? जब आप ये जो पढ़ोगे अभी, आप जो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगी, उसमें ये दिया गया है यहाँ पर कि जब आप वो सब पढ़ोगे तो आपको कैसे टेक्स्ट को समझने में हेल्प मिलेगी। करेक्टिंग देयर वर्क, अभी आप ग्रामर पढ़ोगे तो जो पहले आप मिस्टेक करते थे ग्रामर में वो आप रिपीट नहीं करोगे। मतलब आपको आइडिया आ जाएगा कि हमारे क्या क्या मिस्टेक्स थी, अभी हमें क्या क्या इम्प्रूव करना है। दिस वे अभी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे हमारे डिक्शनरी में कैसे दिया रहता है हर एक चीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये समझ लो आपका ग्रामर का डिक्शनरी है। इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट ये मिलेंगे, टर्म्स मिलेंगे। जैसे आपको टेक्स्ट बुक में आप देखोगे एब्रीविएशंस आते हैं। एब्रीविएशंस क्या होता है, अभी मैंने एब्रीविएशन वर्ड बोला तो यू शुड नो कि उसका मीनिंग क्या है। एग्जाम्पल बाद में, पहले मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, जैसे अगर मैंने एम आर लिखा है, ओके, एम आर लिखा है, इट मीन्स क्या, मिस्टर। ना यार VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके एब्रीविएशंस है। आपको टेक्स्ट बुक में जब आप पढ़ोगे तो आपको ये डिफरेंट एब्रीविएशंस मिलेंगे। अभी आप SSC बोर्ड में पढ़ते हो, 10th स्टैंडर्ड में आए हो, SSC का फुल फॉर्म क्या है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। ओके, नाउ हियर वी हैव ET, हियर वी हैव ET, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटसेट्रा। ओके, ETC का फुल फॉर्म क्या है, एटसेट्रा। हम बोलते हैं कभी कभी स्पेलिंग एरर भी हो जाता है लिखने में, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे एक्सेट्रा बोलते हैं, एक्सेट्रा। ओके, सो इट्स एटसेट्रा। नाउ हियर वी हैव एब्रीविएशंस। अभी एक्ट क्या होता है, प्ले, ड्रामा। एक्टिव वॉइस क्या होता है, सी द वॉइस। अभी इसमें दिया है ब्लू कलर में, इसका मतलब आगे ये टर्म्स एक्सप्लेन किए गए हैं। नाउ एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एडजेक्टिव बोलते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। सो आप भी देखोगे एक एक चीज यहाँ पर कवर गया है। एग्जाम्पल दिया गया है, शेप, जैसे अभी टेबल, टेबल नाउन है, अब यहाँ लिखा है अ राउंड टेबल। टेबल कैसा है, राउंड। सो ये राउंड वर्ड जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है।
जो एक्स्ट्रा बता रहा है टेबल के बारे में। सो शेप के लिए देखो राउंड है, स्क्वायर है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स आपको मिलेंगे। अभी स्क्वायर वर्ड बोलेंगे तो स्क्वायर नाउन में भी आता है, जैसे हमारा रेक्टेंगल है, ओके, बट यहाँ शीट की बात की गई है। शीट्स कैसे हैं? स्क्वायर शेप के हैं, यहाँ शेप की बात की गई है। नाउ हियर वी हैव साइज, ओके, ह्यूज है, स्मॉल है, टाइनी है, कलर रेड है, व्हाइट है। दो अगर रेड को हम कंसिडर करेंगे तो रेड जो है नाउन में आएगा, बट यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? रोज। सो रोज को डिस्क्राइब कर रहा है रेड यहाँ पर। सो दिस इज योर रेड इज योर एडजेक्टिव। दिस वे अगर आप इसको थॉरली प्लीज एक बार जरूर देखना, सो दैट आपके जो कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर के कुछ ऐसे टॉपिक्स छूट गए होंगे, so you can easily cover up here, and you can easily understand those topics over here. Now about the here adjectives, अभी कुछ ऐसे adjectives हैं जो end होते हैं full। here useful, use आपका क्या है? use is your ये आपका verb है use करना, तो here use कैसा है? useful। बट यहाँ पर जैसे यूजफुल मतलब जिसको हम यूज कर सकते हैं, या हियर लेस, एबल, एंड वाई ऑल्सो, सॉल्टी, OUS। तो ऐसे भी एडजेक्टिव्स आपको आएंगे वर्ड फॉर्मेशन में, जिसमें आपको चेंज करना रहेगा। जैसे वहां पर जो भी वर्ड दिया रहेगा उसको बोलेंगे एडजेक्टिव में चेंज करो। हियर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ओके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा, एडजेक्टिव ढूंढ के बताना होगा कि एडजेक्टिव क्या है, और जिसमें वर्ड फॉर्मेशन में यूज होता है। ये जो मैंने बताया अभी, ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं जिसमें लेस और फुल और एबल यूज किया गया है, ये आपको वर्ड बिल्डिंग, वर्ड फॉर्मेशन में आएंगे। नाउ एडजेक्टिव्स का यूज अभी आपको डिग्रीज में आएगा, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री। तो यार बिग, ये आपका एडजेक्टिव है, उसको क्या किया गया है? बिगर, बिगर। सो दिस इज योर कंपैरेटिव, और उसका जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या है? बिगेस्ट। सो यार बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये हो गया आपका कौन सा टॉपिक हो गया? दिस इज योर डिग्रीज, जिसमें आपको कंपैरेटिव से पॉजिटिव चेंज करना रहता है। नाउ हियर एवरीथिंग अबाउट योर डिग्री, डिग्री के बारे में जो भी है सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नाउ अबाउट एडजेक्टिव क्लॉज, क्लॉज के टाइप्स होते हैं, ओके, सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स होते हैं नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो उसमें एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है उसके बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दिया गया है। Okay, a clause that functions as an adjective and tells us more about a noun. Okay, so adjective का मीनिंग ही होता है कि नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया जाए। So here this is your example of adjective clause. Now we have here adverbs. Okay, adding something to verb, that is adverb. So यहाँ पर दिया गया he runs fast, she went away, the girl sang sweetly. So how? Sweetly. How he ran away fast. Okay, so these are your adverbs. So adverbs में भी आपको adverb के भी बहुत सारे सब टॉपिक्स आएंगे उसमें, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन लिखनी रहेगी या आइडेंटिफाई करना रहेगा। देन वी हैव हियर एडवर्ब्स में वर्ड फॉर्मेशन में भी आएगा, जिसमें लास्ट में ly ऐड करना होगा। देन अबाउट योर क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्बियल, एलिटरेशन। नाउ योर एलिटरेशन क्या होता है चिल्ड्रन? एलिटरेशन इज योर दिस फिगर्स ऑफ स्पीच में आता है, जिसमें साउंड, लेटर सेम साउंड रहता है लेटर का। सो दिस वे ऑल दीज आर टॉपिक्स, ऑल दीज आर एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, जिसमें से आप थोड़ा सा रीड करो, समझो, और आपके जो टेक्स्ट बुक्स, जब आप डील करोगे टेक्स्ट बुक से, तो आप इजीली उसको समझ पाओगे। चिल्ड्रन, अभी आपको कुछ ऐसा क्वेरी, कुछ डाउट है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए।
क्योंकि ये इंटरएक्टिव क्लास है, इसमें मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके टेक्स्ट बुक के बारे में। तो ऐसी कोई चीज जो आपको नहीं समझ में आई है आप पूछ सकते हैं। अंकिता, अंकिता प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग। No, ma'am, I don't have any kind of doubt. ओके, विशाल एंड तुषार। अब्दुल। हेलो मिस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिस कितने परसेंट तक का कवर हो जाएगा ग्रामर अगर हम वो पढ़े 9 स्टैंडर्ड का? 9 ऑलमोस्ट 100% है, बट वो लेवल थोड़ा सा अभी इस टाइम पे हाई रहेगा। तो अप्रोक्सीमेटली 90% तो कवर रहेगा आपका। सारे टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं जो 10th के हैं। ओके मिस, थैंक यू मिस। वेलकम। यस अंकिता, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. हाँ, डू यू हैव एनी डाउट? No, ma'am. श्योर? Yeah, ma'am, I'm sure. ओके। नसरीन। No, ma'am, nothing. ओके, I सो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं है। Yes, ma'am. Okay, so if we'll move further now, here aspects, children, ये aspects क्या होते हैं we will see that। लैंग्वेज स्टडी में अभी ये टेंस और उसके एस्पेक्ट्स रहते हैं, जिसमें एस्पेक्ट्स बोले तो टाइप्स। तो टेंस के कितने टाइप्स हैं आपका? सिंपल है, प्रोग्रेसिव है, ओके, प्रोग्रेसिव को कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। वी हैव परफेक्ट, वी हैव परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सो दीज ऑल 4 एस्पेक्ट्स यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो हियर 4 एस्पेक्ट्स वहां पर एक्सप्लेन किया गया है। देन हियर विल सी मॉडल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता भी है, आइडेंटिफाई करने के लिए भी आता है, और इवन उसके फंक्शंस को पहचानने के लिए भी आता है कि मॉडल ऑक्सिलरी का क्या फंक्शन है। तो हियर वी हैव मॉडल ऑक्सिलरी। अभी मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या क्या आएगा, तो कौन कौन से टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे? वी हैव हियर कैन, शुड, मे, मस्ट एंड विद एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। सो व्हेन यू विल गो थ्रू दिस, तो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ यू विल हैव योर एग्जाम्पल्स। तो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू। आपका जो बहुत सारा जो कंफ्यूजन है वो यहाँ ही क्लियर हो जाएगा। जब आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे, जब आप टेक्स्ट बुक्स रीड करोगे अपने इंग्लिश का 10th का, तो आपको ये सारे ग्रामर हेल्पफुल रहेंगे समझने में। नॉट इवन ग्रामर के टॉपिक्स के अलावा आपके जो फिर आपका राइटिंग स्किल इंप्रूव होगा। इवन आपको जो पैराग्राफ में चेंज करना रहता है, राइटिंग स्किल में जो आता है, आपको डायग्राम रहेगा, आइदर ट्री डायग्राम होता है, उसको पैराग्राफ में चेंज करना है, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल रहेंगी। So with this, I have completed today's topic, children. Today it was your interactive class only, जिसमें मैंने आपको कुछ पढ़ाना नहीं था। I wanted to give an idea about your textbook, जो बहुत important था। So I hope कि आपको समझ में आया होगा। Please children, if you have any doubt, you can ask me. Shahadab. Shahadab, can you hear me? No, teacher. Do you have any doubt? No. So why you have raised your hand? टीचर मेरा माइक म्यूट हो गया, अनम्यूट नहीं हो रहा था, वही सॉरी है। Okay.
So Abdul, Manasvi, you can unmute yourself. Hello, ma'am. हाँ जी, Ma'am, model auxiliary verb means helping verb ना? नहीं, हाँ, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है वो, मतलब वो सारे हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं, बट वो आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं उसको। आप यहाँ जो मैंने आपको यहाँ पर आपको बताया, जो एक्सप्लेनेशन दिया, जो आप ये रीड करोगे ना, तभी Yes. आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी वो मैं टॉपिक पढ़ा नहीं रही हूँ, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी दे नहीं सकती, बट मैं आपको आइडिया ये दे रही हूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब्स में जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उसमें क्या होता है, वो कुछ फंक्शन, मतलब कुछ बताते हैं आपको, एबिलिटी, जैसे कैन एबिलिटी दिखाता है, शुड कंपल्शन दिखाता है, मे पॉसिबिलिटी दिखाता है। सो दिस वे डिफरेंट उसका एक्सप्लेनेशन है, वो हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो कवर करेंगे उसको। Yes, ma'am. Thank you. वेलकम। पुष्पा, Miss, idiom is, इडियम्स, yes, Miss, idiom. आप लोगों को हिंदी में रहता है ना, कहावत रहती है, मुहावरे रहते हैं, ओके, वैसे ही वो सारे इंग्लिश में टर्म्स आपको मिलेंगे, इडियम्स, ओके, एंड प्रोवर्ब्स। रोहन, मैम, ये 9th की बुक की 10th की, रोहन आपने क्या कहा, मैं सुन नहीं सकी, फिर से प्लीज बोलिए। मैम ये 9th की बुक की 10th की। मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया वो 10th का था, ये जो ग्रामर का मैं पार्ट आपको दिखा रही हूँ, पेज नंबर 109 से 120 वाला, ये आपको 9th की बुक में मिलेगा। ये जो पेजेस हैं ये आपको 9th की बुक में मिलेंगे। इज दैट क्लियर रोहन? हेलो सानू, मैम। हाँ हाँ जी, मैम। हेलो मैम, बोलिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैम। मैम, इन फर्दर you will learn the model auxiliary to all. हाँ, in the coming lectures we will have grammar topics, we will have everything, so don't worry about that, but Ma'am, I'm उसके पहले scared. you, the- sorry, Ma'am, ma'am, I'm very scared because of this model auxiliary is very no, please don't scare, be scared होने की कोई जरूरत नहीं है, everything is very easy, बहुत easy topics आएंगे आपको। सो एक टॉपिक नहीं आता है तो उसके लिए मत डरो, आपको बाकी 99 टॉपिक्स तो आएंगे ना, हाँ मैम। स्लोली हम उस एक टॉपिक पे वर्कआउट करेंगे, ओके मैम। ओके, डोंट वरी, नो नीड टू बी स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग, इट्स वेरी इजी, बट फॉर दैट यू नीड टू स्टडी 9th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का, जो ये टेक्स्ट बुक में 109 से 120 है, ये आपको ग्रामर में हेल्पफुल रहेगा। यस मैम, थैंक यू। ओके, अभिषेक। Yes, teacher. Good morning. Teacher, what is mean by proverbs? गुड मॉर्निंग। प्रोवर्ब मतलब आपकी कहावत होती है ना, Oh, teacher, but item also. एक मुहावरा होता है, एक कहावत होती है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, वो आपको जब टॉपिक समझाएंगे तब बताएंगे। Okay, अभी teacher. आपको इस एक्सप्लेनेशन पार्ट से कुछ भी डाउट है तो आप वो पूछिए। No, teacher. ओके, सो आई होप मैंने सबके डाउट्स, सबकी क्वेरी सॉल्व किए हैं। Abhishek, mute yourself. Okay, so with this we have completed today's interactive class. Thank you children for attending. Yes, Shweta. Hello ma'am, good morning. Sorry. Good morning. Yeah ma'am, I wanted to take a screenshot. So can you please share your screen? Okay, which screenshot do you want? Like 1092 1012.
डियर इट वोंट बी विजिबल, क्लियर विजिबिलिटी नहीं होगी. सो मैं आपको अगर आइडिया दूं तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे जाके. 9th का पीडीएफ डाउनलोड करके आप वहां से ये सारे पेजेस देख सकते हो. ओके मैम, थैंक यू. ओके, अभी स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं आएगा आपको. ओके. So with this we have completed today's class. Thank you children for paying attention and all the very best for your studies. Thank you, Rinki ma'am. Children, the very first lecture, I hope you are clear with it and you are relaxed that the lectures which are going to be every day, we are having 4 lectures, very good teachers, expert teachers are taking your lectures. They are making you easy studies. They are making you understand your topics. They are making you fearless study so that you can approach your board exams very nicely and very happily. So students, the first lecture is finished over here. I'll stop here for the first lecture. Rinki ma'am, thank you very much. Thank you, madam. Thank you so much.